اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عورت کی فطرت۔ فرمایا کہ تو رات دن جنگ کرتا ہے اور عورت کی تہذیب اخلاق چاہتا ہے اور عورت کی نجاست کو اپنے آپ سے صاف کرتا ہے، اپنے آپ کو اس سے پاک کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ تو اسے اپنے آپ میں پاک کرے، اپنے آپ کو اس سے مہذب بنا، اس کی طرف جا اور جو وہ کہے اسے تسلیم کر، خواہ تیرے نزدیک اس کی بات محال ہی کیوں نہ ہو، اور غیریت کو چھوڑ دے، اگرچہ غیریت مردوں کا وصف ہے، لیکن اس اچھے وصف ہی سے تجھ میں بڑے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کی خاطر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ترک دنیا نہیں، راہب خلوت کے راستے پر چلتے ہیں، پہاڑوں میں بیٹھنا عورت کو اچھا نہ سمجھنا اور ترک دنیا ان کا طریق ہے۔ خداوند عز و جل نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چھپا ہوا باریک راستہ دکھا دیا، اور وہ کیا ہے؟ عورت کو چاہنا تاکہ عورتوں کے ظلم سہے اور ان کی محال باتیں سنے، خجالت ہو اور اپنے آپ کو مہذب بنائے۔ آپ بہترین اخلاق پر قائم ہیں۔ دوسروں کے ظلم سہنا اور تحمل کرنا ایسا ہی ہے کہ تو اپنی غلاظت کو ان سے مل دیتا ہے، تیرا اخلاق بردباری سے اچھا ہو جاتا ہے اور خجالت اور تعدی سے ان کا اخلاق بد ہو جاتا ہے۔ پس جب تو نے یہ بات سمجھ لی تو اپنے آپ کو پاک بنا، انہیں لباس کی طرح سمجھ، کیونکہ اپنی پلیدی کو تو ان سے پاک کرتا ہے اور تو پاک ہو جاتا ہے۔ اگر تجھ سے خود ایسا نہ ہو تو عقل کی روح سے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ نکاح نہیں ہوا، یہ ایک آوارہ معشوقہ ہے، جب بھی شہوت غالب آتی ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ اس طریق پر اپنے آپ سے حمیت، حسد اور غیرت کو دور کر، تاکہ اس سے ورے تجھے مجاہدہ اور تحمل کا مزہ آنے لگے اور ان کے محالات سے تیرا حال ظاہر ہو، تو اس کے بعد اپنے آپ پر زور دیے بغیر ہی تو مزید تحمل اور مجاہدہ کو برداشت کر سکے، کیونکہ تو اس میں ایک معین فائدہ دیکھے گا۔ کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ جنگ سے لوٹ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، آج رات ڈھول بجایا جائے اور شہر کے دروازہ پر سوئیں، کل شہر کے اندر جائیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کیا مصلحت ہے؟ فرمایا کہ یکایک چلے جانے سے ہو سکتا ہے کہ تم وہاں اپنی عورتوں کو بیگانے مردوں کے ساتھ دیکھو اور تمہیں علم ہو اور فتنہ پیدا ہو جائے۔ صحابہ میں سے ایک نے یہ بات نہ سنی، وہ اپنے گھر چلا گیا، اپنی عورت کو غیر مرد کے ساتھ پایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق یہ ہے کہ غیرت اور حمیت کو دور کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے اور عورت کو روزی اور کپڑا مہیا کرنے کے لیے مشقت کرنی چاہیے۔ 100,000 بڑے غم چکھو تو عالم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ دکھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریق خلوت کا مجاہدہ اور شہوت کو روکنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ عورت اور مرد کے ظلم اور غصہ کو برداشت کرنا ہے۔ اگر تو محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ پر نہیں چل سکتا تو عیسیٰ کے راستے پر چل، تاکہ تو بالکل ہی محروم نہ رہے، بشرطے کہ تو یہ وصف رکھتا ہو کہ 100 چپت کھا لے اور پھر اسی کو اس کا حاصل سمجھے، یا تو غیب کا معتقد ہو جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہے اور خبر دی ہے، اور سمجھ لے کہ کوئی ایسی چیز ہے، اس وقت تک صبر کروں کہ وہ حاصل جس کی انہوں نے خبر دی ہے مجھ تک بھی پہنچ جائے۔ اس کے بعد تو دیکھے گا کہ اگرچہ تیرے دل میں یہ بات ہوگی کہ اگرچہ ان تکلیفوں کا حاصل اس گھڑی میرے لیے کچھ نہیں، آخرکار جو خزانے میں چاہتا ہوں ان تک میں پہنچ جاؤں گا، اور جن خزانوں کی تجھے تما تھی اور جن کی تجھے امید تھی ان سے بھی بڑھ کر وہ خزانے ہوں گے جن تک تیری رسائی ہوگی۔ اگر یہ بات اس وقت تجھ پر اثر نہیں کرتی تو جیسا تو پختہ ہو جائے اس وقت یہ بہت زیادہ اثر کرے گی۔ عورت کیا ہوتی ہے، دنیا کیا ہوتی ہے، تو خواہ کہہ خواہ نہ کہہ، وہ وہی کچھ ہے جو کچھ کے ہے، جو کچھ وہ کرتی ہے اس سے باز نہ آئے گی۔
बल्कि तेरे कहने से वो बद से बदतर ही होगी। मिसाल के तौर पर रोटी ले और उसे बगल में दबा ले और किसी को ना दे और कह दे मैं किसी को ना दूंगा। देना तो एक तरफ, मैं दिखाऊंगा भी नहीं। अगरचे रोटियां कसरत और इरजानी की वजह से दरवाजों के सामने ढेरों की सूरत में पड़ी हों और उन्हें कुत्ते भी ना खाते हों, मगर तूने उस रोटी से खलकत को मना किया है। वो उस तरफ रागिब हो जाती है और उसके पीछे पड़ जाती है और हर अच्छे बुरे तरीका से चाहती है कि उसे देख कर छोड़े जिससे तूने उसे मना किया है और जिसे तूने छुपाया है। खास तौर पर अगर तू उस रोटी को साल भर छुपाए फिरे और मुबालगा के साथ ताकीद करता रहे कि तू उसे किसी को नहीं दिखाएगा, तो खलकत की रगबत हद से ज्यादा गुजर जाए, क्योंकि तबन इंसान इस चीज का हरीस है जिससे उसे मना किया जाए। तू औरत को जितना ज्यादा हुक्म देगा कि वो छुपी रहे, इतना ही उसे अपने आप को दिखाने की ज्यादा फिक्र होगी और औरत के छुपने से खलकत को उसकी तरफ और ज्यादा रगबत हो जाती है। बस तू बैठा हुआ है और दो तरफ से रगबत को बढ़ा रहा है और समझता है कि तू इस्लाह कर रहा है। ये खुद ऐन फसाद है। अगर उस औरत में ये खूबी है कि वो फेले बद ना करे, तू खा मना करे और खा ना करे, वो अपनी नेक तबा और पाक सरिश्त पर चलेगी। बस तू फारिग हो जा और तशवीश ना कर। और अगर औरत की तबा और सरिश्त इसके बरक्स हो तो फिर भी वो अपने ही तरीक पर चलेगी। हकीकत यह है कि तेरा मना करना सिवाय रगबत बढ़ाने के और कुछ ना करेगा। वली की पहचान बहुत मुश्किल है। ये मर्द कहते हैं कि हमने शमसुद्दीन तबरेजी को देखा है। जनाब, हमने उसे देखा है। ऐ नामाकूल, तूने कहां देखा? वो आदमी जो शुत्र सवार को नहीं देखता कहता है मैंने सुई के नाके को देखा और उसमें तागा परो दिया है। ये क्या ही अच्छी बात है। मुझे दो चीजों पर बड़ी हंसी आती है। एक ये कि हबशी अपनी उंगलियों के पोरों को काला करे, दूसरे ये कि अंधा दरीचे में से सर बाहर निकाले। ये ऐसे ही है। इनके बातिन अंधे हैं। ये अंधे बातिन जिस्म के दरीचा से बाहर झांकते हैं। ये क्या देखेंगे? इनकी तहसीन और इनके इनकार से क्या होता है? अक्लमंद के नजदीक ये दोनों एक ही है। दोनों ने देखा, दोनों बेहुदा गोई करते हैं। पहले बिनाई हासिल करनी चाहिए, इसके बाद देखना चाहिए, और जब बिनाई हासिल हो जाए तो भी क्या देख सकते हैं? देखना यह है कि वो हकीकत में हो। इस दुनिया में चंद औलिया जो बीना और वासिल हैं और उनसे भी ऊपर औलिया हैं, उन्हें मस्तूराने हक कहते हैं। ये औलिया आहुजारी करते हैं कि ऐ खुदा, इन छुपे हुए औलिया में से हमें भी कोई एक दिखा, क्योंकि जब तक वो खुद न चाहें कोई उन्हें नहीं देख सकता, ख्वाह आंखें बीना ही हो। हर चंद की वो बीना आंख रखते हैं, वो उसे नहीं देख सकते। अब भी शराबी जो बदकार हैं उन तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक वो खुद न चाहे कि कोई उन तक पहुंचे। मस्तूराने हक को उनकी मर्जी के बगैर कैसे देखा जा सकता है? इसकी शनाख्त कोई आसान काम नहीं। इसमें फरिश्ते भी आजिज हैं और हम तेरी हमद के साथ तेरी तस्बीह और तेरी तकदीस करते हैं। हम भी इश्कनाक और रूहानी हैं, नूर महज हैं। ये जो इंसान है ये शिकम ख्वार और खून रेज हैं, वो खून रेजी करते हैं। अब ये सब इसलिए है ताकि आदमी अपने आप से लर्जा होकर रूहानी फरिश्ते जिनके पास न माल था, न जा और न हिजाब, अल्लाह का नूर महज उनके लिए इज्जा है। इन तेज चश्म और दूरबीनों के लिए अल्लाह ताला का जमाल इश्क महज है। इनकार और इकरार के दरमियान रहना इसलिए है कि इंसान ये सोचकर कांप उठे कि मैं क्या था और कहां पहचान रहा हूं। नेज़ अगर उस पर अल्लाह का नूर चमक उठे और उसका ज़ौक जाहिर हो जाए तो वो खुदा का हजार शुक्र करता है कि मैं इस लायक कहां था। इस मर्तबा तुम शमसुद्दीन की बात से ज्यादा ज़ौक हासिल करोगे, क्योंकि कश्ती वजूद का बादबान इत्काद रखने वाला मर्द है। जब बादबान मौजूद हो तो हवा उसे किसी बड़ी जगह ले जाती है, और जब बादबान ना हो बात हवा होती है। अच्छा है कि आशिक व माशूक के दरमियान बेतकल्लुफी बहस होती है। सब तकल्लुफात गैर के लिए हैं। हर वो चीज जो इश्क के अलावा है उस पर हराम है। ये बात मैंने जोरदार अल्फाज में कह दी है, मगर बेवक्त है। बहुत कोशिश करनी चाहिए और नहरें नदियां खोदनी चाहिए ताकि दिल के हौज तक पहुंचे। सिवाय इसके कि कौम मलूल हो
या कहने वाला मलूल हो और वो बहाना करता हो, वरना वो कहने वाला जो कौम से मलाल दूर न करे, 2 पैसे का नहीं। आशिक किसी से माशूक के हुस्न को बतौर दलील के इस्तेमाल नहीं कर सकता और कोई शख्स आशिक के दिल में कोई दलील नहीं बिठा सकता जो माशूक के बुग़्ज़ पर दलालत करती हो। बस मालूम हुआ कि जहां दलील काम नहीं करती, यहाँ इश्क का तालिब होना चाहिए। अब अगर मैं आशिक के लिए अपने शेर में मुबालिगा करूं तो वो मुबालिगा ना होगा। नेज़ मैं देखता हूं कि मुरीद अपने मानी को शेख की सूरत पर निसार कर देता है। ऐ वो कि तेरी सूरत 1000 मानी से ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए कि हर मुरीद जो शेख के पास आता है रूहानियत के ख्याल से ही आता है और शेख का मोहताज होता है। बहाउद्दीन ने सवाल किया कि वो शेख की खातिर मानी को नहीं छोड़ता, बल्कि वो अपने मानी को छोड़ता है शेख के मानी की खातिर। फरमाया, नहीं चाहिए कि ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा हो तो वो दोनों ही शेख हुए। अब कोशिश करनी चाहिए कि तू अपने आप में नूर हासिल करे ताकि तशवीशों की आग से तू खलासी पाए और मामून हो जाए। जिस किसी को अपने अंदर नूर हासिल हो जाए, अहवाले आलम जिनका ताल्लुक दुनिया से है, जैसे मनसब, अमारत, विजारत, इसके अंदर ही चमक उठते हैं और इनका गुजर बिजली की तरह होता है। अहले हक कुल्ली तौर पर खुदा के कूशता है और खुदा की तरफ मतवज्जो है। वो हक ही में मशगूल और मुस्तगरिक है। दुनिया की हवस नामर्द की शहवत की तरह होती है, मगर उसे करार नहीं होता और गुजर जाती है। अकल के अहवाल में अहले दुनिया इसके बरअक्स हैं। मुस्तगनी कौन है? शरीफ या सौख्ता कहता है। तर्जुमा शेर, वो नेमतें बख्शने वाला खुदा जो इस जहान से मुस्तगनी है, जान उसी की है और वो जान से बेनियाज है। तर्जुमा शेर, हर वो चीज जिस पर के तेरा वहम मुहीत हुआ उसी का किबला है और वो उससे मुस्तगनी है। ये अशार बहुत मशहूर हैं, ना ये बादशाह की मदह है और ना अपनी। ऐ मर्दक, तुझे इससे क्या ज़ौक हासिल होगा कि वो तुझसे मुस्तगनी है। ये दोस्तों का खिताब नहीं, ये दुश्मनों का खिताब है कि दुश्मन खुद कहता है मैं तुझसे आज़ाद हूँ, मैं मुस्तगनी हूँ। अब इस गर्मरो आशिक को देखो कि ज़ौक की हालत में माशूक से ये खिताब है कि वो उससे मुस्तगनी है। इसकी मिसाल ये होगी कि एक बंगी गिलाजत पर बैठा हो और कह रहा हो मैं एक बंगी हूँ, बादशाह मेरी तरफ से आज़ाद है और उसे किसी बंगी से काम नहीं। बंगी मर्द को ये ज़ौक कहाँ कि दरअसल बादशाह उससे आज़ाद है। हाँ, ये बात होगी कि बंगी कहता है कि मैं मजबला की छत पर था, बादशाह गुजरा, मैंने उसे सलाम किया, उसने नजर भर कर मेरी तरफ देखा और वो मेरे करीब से चला गया और अब तक मुझ पर उसका कर्म है। ये बात बंगी के लिए शौक पैदा करने वाली है, वरना ये बात कि बादशाह बंगियों की तरफ से आजाद है, इससे बादशाह की क्या तारीफ हुई और इसने क्या मजा दिया बंगी को। जिस चीज की तरफ तेरा ख्याल उसका मुहीत हो गया, ऐ मर्दक तू किस ख्याल में पड़ा है? लोग तेरे वहमो ख्याल से मुस्तगनी हैं और अगर तू अपने वहम की बिना पर उनसे बात करे तो वो मलूल होते हैं और गुरेज करते हैं। कौन सा वहम है कि जिससे खुदा मुस्तगनी नहीं होता? खुद इस्तगना की आयत काफरों के लिए आई है, हाशा कि ये खिताब मोमिनों से हो। ऐ मर्दक उसका इस्तगना साबित है, वरना अगर तेरी ये हालत हो कि तेरी कुछ कदर कीमत हो तो तेरी इज्जत के मुताबिक वो बेनियाज ना हो। मोहल्ला के शेख ने कहा, पहले दीद है, इसके बाद गुफ्तो शुनीद। चुनाचे बादशाह को देखते सभी हैं, लेकिन बात उससे खास लोग ही करते हैं। फरमाया कि ये टेढ़ापन है और जलील करने वाली चीज है और उल्ट है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले गुफ्तो शुनीद की, इसके बाद दीदार तलब किया। गुफ्तगू का मुकाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ, दीदार का मुकाम हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। बस ये बात किस तरह ठीक बैठे और कैसे हो। इंसानी मसरूफियतों की हकीकत। फरमाया किसी आदमी ने मौलाना शमसुद्दीन तबरेजी के सामने कहा कि मैंने मौलाना शमसुद्दीन की मदद से दलीलें काते देकर खुदा की हस्ती साबित कर दी है। फरमाया कल फरिश्ते आए थे और इस आदमी के लिए दुआ करते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह इसने हमारा खुदा साबित कर दिया।
اس کا خدا اس کی عمر لمبی کرے، دنیا کے حق میں اس نے کوتاہی نہیں کی۔ اے مردوے، خدا ثابت ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ اگر تو کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے اس کے سامنے ثابت کر، ورنہ وہ تو بغیر دلیل ہی کے ثابت ہے۔ کوئی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ اس میں شک نہیں کہ یہ فقیہ زیرک ہیں اور اپنے فن میں مہارت رکھتے ہیں، لیکن ان کے اور اس عالم کے درمیان انہوں نے جائز اور ناجائز نظام کے لیے دیوار کھینچ دی ہے۔ اگر ان کے حجاب کی یہ دیوار درمیان میں نہ ہو تو انہیں کوئی نہ پوچھے اور وہ کام معطل ہو جائے۔ اور اس کی مثال بڑے مولانا قدس اللہ سر العزیز نے فرمائی ہے کہ وہ عالم ایک دریا کی طرح ہے، اور یہ عالم مثال جاگ ہے۔ خدا عز و جل نے چاہا کہ جاگ کو آباد کرے، اگر وہ اس میں مشغول نہ رہے تو مخلوق ایک دوسرے کو فنا کر دے اور اس سے جاگ کی خرابی لازم آئے۔ بس یہ ایک خیمہ ہے جو انہوں نے بادشاہ کے لیے نصب کر رکھا ہے اور قوم کو اس خیمہ کی تعمیر میں مشغول کر دیا ہے۔ ایک کہتا ہے اگر میں رسی نہ بناؤں تو خیمہ کیسے سیدھا رہے، اور دوسرا کہتا ہے اگر میں میخ نہ بناؤں تو رسی کو کہاں باندھے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اس بادشاہ کے بندے ہیں جو اس خیمہ میں بیٹھے گا اور تفرج محسوس کرے گا۔ بس اگر جلاح وزارت کی خواہش میں بافندگی ترک کر دے تو ساری دنیا ننگی اور برہنہ رہے۔ بس اسے بافندگی ہی کا ذوق بخشا اور وہ اس میں خوش ہے۔ بس اس قوم کو جاگ کے نظام عالم کی خاطر پیدا کیا ہے، اور عالم کو اس ولی کے نظام کے لیے مبارک ہے وہ کہ جس کے نظام کے لیے عالم کو پیدا کیا گیا، نہ کہ اسے نظام عالم کے لیے۔ بس خدائے عز و جل اس کام میں ہر کسی کو خوشی اور مسرت بخشتا ہے۔ اگر اس کی عمر 100,000 سال ہو تو بھی وہ یہی کام کرتا ہے، اور ہر روز اس کام سے اس کی محبت زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور اس پیشہ میں اسے دقت نظر حاصل ہوتی جاتی ہے، اور اس سے وہ لذت اور خوشی پاتا ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں جو حمد خداوندی کی تسبیح میں نہ لگی رہتی ہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔ رسی بنانے والے کا وظیفہ جدا ہے، اور بڑئی جو خیمہ کے ستون بناتا ہے اس کا وظیفہ جدا ہے۔ اب یہ قوم جو ہمارے پاس آتی ہے، اگر ہم اس کے سامنے خاموش رہیں تو وہ ملول اور رنجیدہ ہوتی ہے۔ اگر ہم ایسی بات کہیں جو اس کے لائق ہو تو اس سے ہم خود رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس پر وہ چلی جاتی ہے اور ہمیں تان دیتی ہے کہ یہ ہم سے رنجیدہ ہے اور گریز کرتا ہے۔ سوکھی لکڑی کب دیگ سے گریزاں ہوتی ہے؟ البتہ دیگ ہی گریز کرتی ہے۔ بس آگ اور سوکھی لکڑی کا گریز نہیں، بلکہ جب وہ اسے دیکھتی ہے کہ وہ کمزور ہے تو اس سے دور ہو جاتی ہے۔ بس ہر حال میں دیگ ہی گریز کرتی ہے۔ بس ہمارا گریز در حقیقت ان کا گریز ہے۔ ہم آئینہ ہیں، اگر ان میں گریز ہے تو وہ ہم میں ظاہر ہو جاتا ہے، ہم ان سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ آئینہ وہ ہے جس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اگر وہ ہمیں ملول دیکھتے ہیں تو یہ ملال ان کا ہے، اس لیے کہ ملال کمزوری کی صفت ہے۔ یہاں ملال کے لیے گنجائش نہیں۔ ملال کا یہاں کیا کام؟ ہر کام بتدریج کرنا چاہیے۔ مجھے گرمی کے موسم میں شیخ صلاح الدین کی تواضع بہت کرنی پڑی۔ اس تواضع کے مقابلے میں شیخ صلاح الدین نے بہت زیادہ تواضع کی۔ میں نے شکایت کی، میرے دل میں آیا کہ تو نے تواضع حد سے زیادہ کی۔ تواضع بتدریج اچھی ہے، پہلے اس کے ہاتھ ملنے چاہیے، اس کے بعد پاؤں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے مقام پر پہنچائے، تاکہ یہ بات ظاہر نہ ہو اور نظر نہ آئے اور وہ اس کا خوگر ہو جائے۔ زحمت میں پڑنا لازمی نہیں، اور خدمت کے بدلے خدمت ضروری نہیں۔ اگر تو اسے تواضع کا عادی بتدریج کرے تو وہ ہو جائے گا۔ دوست کو تھوڑا تھوڑا ایک طرح سے اور دشمن کو تھوڑا تھوڑا دوسری طرح سے عادی بنا۔ مثال کے طور پر دشمن کو تو پہلے تھوڑی تھوڑی نصیحت کر، اگر وہ نہ سنے تو پھر اسے پیٹ، اگر اب بھی نہ سنے تو اسے اپنے آپ سے دور کر دے۔ خداوند تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بس ان کو سمجھاؤ، پھر ان کے ساتھ ہم خوابی ترک کر دو، پھر انہیں مارو۔ سورہ نساء۔ اور دنیا کا کام اسی طرح چلتا ہے۔ تو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں بہار کو صلح اور دوستی تھوڑی تھوڑی گرمی دکھاتی ہے؟ اس وقت تو درختوں کو زیادہ سے زیادہ دیکھ کہ جب وہ تھوڑے تھوڑے بہار پر آتے ہیں تو پہلے ایک تبسم سا پیدا ہوتا ہے جو ان درختوں کے لیے
पत्ते पैदा करता है। इस वक्त उनका साजो सामान सूफियाना और दरवेशाना होता है। उसे वो दरमियान में ला रखते हैं और जो कुछ उसके पास होता है सब हार देता है। बस जो शख्स दुनिया के काम और उकबा के काम जल्दी करता है और इब्तिदाई कार में सख्त कोशिश करता है, वो काम उस पर आसान नहीं होता। अगर रियाजत है तो इसका भी यही तरीका बयान किया गया है कि अगर रियाजत करने वाला हर रोज एक सेर रोटी खाता है तो उसे बतदरीज थोड़ा थोड़ा कम करता जाए। इस तरह 1 साल या 2 साल न गुजरे कि रोटी निस्फ सेर रह जाए। कम इस तरह करे कि ये कमी जिस्म को महसूस न हो। इसी तरह इबादत, खलवत और बंदगी की तरफ तवज्जो और नमाज का मामला है। नमाज में जब वो खुदावंद ताला की तरफ रजू करे तो पहले अरसा में वो 5 नमाजों पर निगाह रखे, इसके बाद ज्यादा करता जाए। एक मुरीद को सरजनश। और असल ये है कि इब्ने चाउश सलाहुद्दीन के हक की पूरी हिफाजत करे, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए नफामंद होता है और इससे ये जुलाम और गफलत के पर्दे दूर हो जाते हैं। ये है इब्ने चाउश। क्या वो अपने दिल में ये नहीं कहता कि बेशुमार लोगों ने अपने वतन और अपने बापों और अपनी माओं और अपने अहलो अय्याल, करीबी रिश्तेदारों और कबीलों को छोड़ दिया और हिंदुस्तान से सिंध का सफर इख्तियार किया और लोहे के बुलंद एड़ियों वाले जूते बनाए जो घिस गए। जब जाकर उन्हें ऐसा शख्स मिला जिसमें उन्होंने इस जहान की खुशबू पाई और बहुत से लोग इसी हसरत में मर गए और कामयाब न हुए और उन्हें उस शख्स सलाहुद्दीन जैसा आदमी न मिला। लेकिन तूने अपने ही घर में उस शख्स जैसा आदमी पा लिया और उससे रूगर्दान हो गया। ये सिवाय गफलत और बलाए अजीम के कुछ नहीं। और मौलाना हमेशा मुझे शेखुल मशाइख सलाहुल हक वद्दीन के हक के बारे में खुदा इनके मुल्क को हमेशा कायम रखे ये नसीहत करते रहे कि वो एक बड़े आदमी हैं। और जब से मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, मैंने किसी दिन भी मौलाना से सवाए इसके और कुछ नहीं सुना कि आपको सैयदना, मौलाना, आरिफ परवरदिगार और आरिफ खालकना वगैरह नामों के सिवा किसी और नाम से ना पुकारा करते थे। क्या ये नहीं कि फासिद इगराज का हिजाब उस पर छा गया है कि वो आज ये कहता है शेख सलाहुद्दीन क्या चीज है। शेख सलाहुद्दीन उसका क्या बिगाड़ सका है सिवाय इसके कि वो इसको एक तारीक कुएं में गिरा हुआ देखकर अपनी शफकत की वजह से ये कहता है कि तारीक कुएं में ना गिरो। इसकी ऐसी शफकत तो बाकी लोगों पर ही है और वो इसकी शफकत को बुरा जानता है, क्योंकि जिस वक्त तू कोई चीज करता है शेख सलाहुद्दीन उसे पसंद नहीं करता और तू मकहूर होता है। और जब तुझ पर इसका कहर और गुस्सा हो तो अनवार का जलवा तू कैसे देखेगा, बल्कि जिस वक्त तू हिजाब में होगा और जहन्नुम के दखान से स्याह हो जाएगा तो वो तुझे नसीहत करेगा और तुझसे कहेगा कि मेरे कहर में ना रह और मेरे कहरो गज़ब के मुकाम से निकलकर मेरे लुत्फ और रहम के मुकाम में आ जा। क्योंकि जब तू कोई फेल मेरी रजा के मुताबिक करेगा तो मेरी लुत्फ के मुकाम में दाखिल हो जाएगा, जिससे तेरा दिल रोशन होगा और तू नूरानी बन जाएगा। वो तो ऐसी नसीहत तेरे फायदा के लिए करता है और तू इस शफकत और नसीहत को गर्ज पर मबनी ख्याल करता है। ऐसा शख्स कभी किसी गर्ज और अदावत से ऐसा नहीं करता। क्या ये बात सही नहीं कि जब तू हराम शराब या भंग पीकर या राग सुनकर या किसी और वजह से मस्त हो जाए तो उस वक्त तू अपने हर दुश्मन से राजी हो जाता है और उनको मुआफ कर देता है और उनके हाथ पांव चूमने पर माइल हो जाता है और उस वक्त काफिर और मोमिन दोनों तेरी नजर में मुसावी और एक जैसे हो जाते हैं। इसलिए शेख सलाहुद्दीन ही ऐसे ज़ौक और मस्ती का मौजब है और ज़ौक के तमाम समंदर उसके पास हैं। बस इसको किसी से बुग़्ज़ या कोई गर्ज कैसे होगी, माअज़ल्लाह। यकीनन वो लोगों से शफकत और रहमदिली के बायस इस तरह कहता है। अगर ये बात ना होती तो उसे जिसको ये अज़मत और मुल्क हासिल हो उन लोगों से क्या गर्ज है जो मकड़ी और मेंढक है और ये मस्कीन की तरह एक दूसरे के बराबर होंगे। क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि आब हयात जुल्मात में वाक़या है, जैसा कि लोगों ने कहा। बेशक ये जुल्मात औलिया के जिस्म है और आब हयात उनके अंदर है। अगर तू जुल्मात को मकरूह जानता है और उससे मुतनफ़र है तो तुझे आब हयात कैसे मिलेगा। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि तू मुखन्नस लोगों से बुराई और बदमाश लोगों से बदी भी सीखने का इरादा करे तो ऐसा हरगिज़ ना कर सकेगा, यहाँ तक कि तू 1000 तकलीफें उठाए
और अपने इरादा के खिलाफ बातें करे, फिर कहीं जाकर कामयाब होगा। फिर तू आबे हयात कैसे हासिल कर सकेगा जो एक बाकी और सरमदी चीज है, और ये औलिया और अंबिया का मुकाम है। शायद तुझे कोई ऐसा हुक्म न देगा जैसा कि हमारे पहले मुशाइख ने हुक्म दिया कि औलाद और मालो मनसब को तरक कर दो, बल्कि ये हुक्म दिया करते थे कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो और हम उसको अपनी बीवी बना लेते हैं, और वो लोग इसको भी बर्दाश्त कर लेते थे। और तुम्हारी ये हालत है कि तुमको एक मामूली सी बात का हुक्म देते हैं और तुम उसे बर्दाश्त नहीं करते, और हो सकता है कि तुम एक चीज को मकरूह समझो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। ये लोग तो अंधे हैं और जहालत में डूबे हुए हैं, और ये नहीं सोचते कि जब कोई शख्स किसी बच्चे या औरत पर आशिक हो जाए तो उसके आगे कैसे झुक जाता है और उसकी नाज़बरदारियां करता है और पूरी कोशिश से उसके लिए माल खर्च करता है और दिन रात बेतबीब खातिर ऐसा करता रहता है और इससे मलूल नहीं होता। बस अगर उसकी मोहब्बत शेख से और अल्लाह से कम दर्जा की भी हो और उसके मामूली हुक्म को तरक कर दे और उससे रूगर्दा हो जाए, तो जान लो कि वो आशिक और तालिब नहीं है। और अगर वो आशिक और तालिब होता है तो जो हमने कहा है इससे कई गुना ज्यादा बात बर्दाश्त कर लेता है, जो उसे शहद और शक्कर से ज्यादा लजीज मालूम होती है। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी, और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।